Hi Parnit ji. Good morning. Hi sir, how are you? Yeah, I'm good. You haven't replied my mobile message. I told to join at 6:50. So have you joined 6:50 or waiting from last 20 minutes? But I was in when I saw your message, I left, so I joined it again. Okay. Then no problem because emergently, I got one information where I have no choice to skip that. Like what happens is in our rituals, if a person is from my gotra, if someone is dying or someone is taking birth in my group, okay. So on 11th day or 13th day, I don't know, a genuine change will be happened. So one of my cousin, uh, so Okay. uh, so due to sun birth and all, uh, we were restricted. Today only it was released. So my father told me after I told you. So I have no choice. I have to change that process with a proper Karna mantra and all process. So it delayed. Okay. Okay. No Sorry. problem. Sorry for the same because I don't know. The time I told you, I don't know. The time I was about to start, and my father told, as you have taken bath, first process you have to do that because actually my father has to do that first, but he was not Okay. ready. Meantime, I have changed the thing. So today onwards, our you can say we are eligible for all the rituals again. So maybe it's Okay. 11 days completed or something. Uh, Like Mm-hmm. that's what I told previously, right? We have some 16 samskaras in our lifespan. So this is the Ji sir. first samskara or second samskara. First one is God Bharai, I believe. So second one samskara. Uh, After birth, it is 11th day completed, I think. So today onwards, again, we are eligible for all other processes. Mm. Let me handle that later. Okay, as you told, today 2.13, no? 14. I haven't seen like exact one. I saw the message, but let me see. In between, I was about to log in and he told me 2.12, right? Yes Okay. sir. So let me check. This one done for you, I think. Sadhaka Vadaka Tattva. 2.12 is done na, for you. Or you haven't attended that, where I told you about which are the stoppers and which are the positive points we need for life, for a yogic sadhana. I This told one six, is done. Yes sir. Yes sir. it's done, Correct. right? Yeah, Yes sir. 2.1. So So you can do 2.13 then. yeah, I'll do 2.1. So what's the time for you? Is it very late for you now? It's around 9:30 p.m. Morning 9:40 or evening 9:40? evening. Evening 9:40. Okay, I'll 9:30. try to finish less than an hour. Okay, don't worry. Okay. Sir. Okay. Take a long breathe in. Take another long breathe in. Breathe in for Om.
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृदेवो भवः, ओम पितृदेवो भवः, ओम गुरुदेवो भवः, ओम अतिथिदेवो भवः। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णेय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरिचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो शिवाय। ओम श्री गणपताय नमः। ओम श्री शनिश्चराय नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो माता पिता गुरु अतिथि सब वेदों को वेदांत को माँ दुर्गे माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती पतये नमः। कार्तिक देवा नमः। माँ गायत्री नमः। सबको प्रणाम करते हुए सब स्वरूपों को प्रणाम करते हुए सब वेदों को प्रणाम करते हुए उपनिषद संहितास दर्शना पुराणास सबको प्रणाम करेंगे एंड धर्म के रास्ते में चलेंगे। मोक्ष का प्राप्ति करने के लिए योग का माध्यम चुनते हुए मानव सेवा करते हुए माधव का संग करें। Now we'll start the concept of मिताहार। पन्नी जी थोड़ा बोर लगा होगा आई नो इतना मंत्र वगैरह, लेकिन मेरे लिए पूरा अर्ली मॉर्निंग है मीन्स ब्राह्मी मुहूर्त में हम लोग चैंट करते हैं, उसके बाद नाउ आई एम स्टार्टिंग द डे, उस हिसाब से थोड़ा चैंट करना अच्छा है। ओके सो इवन इफ जी इट्स सर। हाँ इवन इफ इट्स सेकंड थर्ड टाइम आई एम डूइंग सुबह, मतलब हर क्लास में करते हैं लेकिन दिस क्लास ना जो
आप लोग का बैच है 6 AM का, वो बैच जी। जनरली मेरा अर्ली मॉर्निंग बैच होता है आफ्टर माई गुरुस क्लास। मेरा गुरु का 4:30 to 5:30, बाद में आप लोग का बैच ही स्टार्ट होता है। तो उसीलिए और चैंटिंग मैं अच्छे से आप लोग को क्यों सुनवाता हूँ कि मेरे लिए भी अच्छा है, एंड इवन दैट विल गो टू योर माइंड, राइट। वो साउंड्स बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अभी इंडिया में दिस इज वेरी ऑस्पिशियस मोमेंट। ब्रह्म जी मुहूर्त सर। से लेके, हाँ, लगभग 3, 3:30 से लेके 7:30 8 तक हमारे लिए वो बहुत पावरफुल टाइम है। कभी भी बोर लगे तो थोड़ा म्यूट कर लेना। ओके। नो नो सर, अच्छा लगता है सर सुन के पॉजिटिव, और मैं फर्स्ट टाइम सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लाइक मुझे आते नहीं है मंत्र, बट मुझे याद हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके। और मैंने शेयर किया था ना मंत्रों का एक सीट भी, आप नहीं देखे जी थे सर, क्या? मैंने पढ़ी थी। आई डिड दैट। वो आप अगर गूगल करेंगे, चैट जीपीटी को पूछेंगे मुझे वाईसीबी का मंत्र दो, थोड़ा उसका ट्रांसलेशन दे दो, क्योंकि संस्कृत सब नहीं पढ़ पाते, तो थोड़ा जी। ट्रांसलेशन, फिर उसका मीनिंग, ये सब धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस में लाएंगे। वाईसीबी में आपको मंत्र चैंटिंग के लिए बोलते हैं, दे विल नॉट टेल की चैंट दिस स्पेसिफिक मंत्र, लेकिन आप अगर 5 6 मंत्र जानते हैं, किसी और को अगर चैंट करने के लिए एक, मतलब आपका राउंड सपोज सेकंड थर्ड में आया, वो लोग 2 मंत्र चैंट कर चुके हैं, आपको एक थर्ड मंत्र चैंट करना है, उसका मीनिंग बताना है। तो कहाँ कहाँ से आया है वो, थोड़ा बहुत अगर आप अभी से प्रैक्टिस में डाल रहे हैं, अगर आप और 15 20 दिन की 25 दिन के बाद एग्जाम में जा रहे हैं, डिफॉल्ट आ जाएगा। मतलब अभी जैसे मंत्र चैंट करने के लिए मुझे ज्यादा और प्रेशर क्यों नहीं होगा, बहुत दिन से चैंट करते ही आ रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं इट्स नॉट इन योगा क्लास, इट्स पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो अभी एक भोजन मंत्र पढ़ना, एक स्नान मंत्र पढ़ना, एक कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्श, ये मेरा घर का ही कल्चर है, तो ऑटोमेटिक आ गया है हमारे में। मतलब और इसको ना और ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा मुझे अभी एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। नहीं तो जनरली मैं बाय हार्ट नहीं कर सकता बहुत चीजें, ये लेकिन रोज सुन सुन के कुछ कुछ कान में ऑफलाइन गिरते 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 एक टाइम के बाद फिक्स हो गया है। तो वही चीज आपको करना है। इतने बार आप रोज चैंट करेंगे, रोज एक बार दो बार, एक बार दो बार, सुबह शाम करते रहिए गायत्री मंत्र का। ओके, त्रयंबकम मंत्र आपका, सहना भवतु सहनो भुनक्तु वाला एक, और आपका जो शांति पाठ, वो सबका क्या होगा। और भी एक है, संघ शक्ति का भी एक है। तो वो सब अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए रोज, तो क्या होगा, एक 1 मंथ में ऐसे ना बाय डिफॉल्ट आपका नेचर में आ जाएगा 21 डेज के बाद ही। नहीं तो अगर नहीं भी हो रहा है, थोड़ा अगर आपके ऑफिस और इसका उसका स्ट्रेस ज्यादा है, 42 डेज में आ जाएगा। तब आपको ना वाईसीबी इंटर में बाय डिफॉल्ट आएगा, और उसका मीनिंग के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बस हो जाएगा। जी। So today we'll talk about Mata, Mitahara, Patya, Apatya. Okay. So in Hatha Yoga and Ayurveda, okay, आयुर्वेदा में भी और हठ योगा में भी मिताहारा को बहुत प्रायोरिटी दिया गया है। मीन्स 50% सॉलिड, ओके, 1/4 लिक्विड, दैट इज 25%, और 25% खाली छोड़ना। तो जब आप कम आहार खा के डाइजेशन के लिए अच्छे से दे रहे हैं, आपका सम अग्नि है, खाना ठीक से पच गया, तभी जाके आपका क्या है, मन शांत रहेगा, एंड यू आर रेडी फॉर हायर प्रिपर, मतलब हायर प्रैक्टिसेस, राजयोग, क्योंकि हठ योगा अल्टीमेट भी राजयोग है। एंड हठ योगा के बारे में अगर मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं आपको, अगर याद है कि नहीं, क्लासिकल पीरियड के बाद मेडिवियल पीरियड में, जो कि लगभग आपको बोल सकता है 600 टू 1600 सी, 1700 सी तक, उस टाइम को पोस्ट पोस्ट क्लासिकल पीरियड बोलते हैं, मेडिवियल पीरियड। तो उस टाइम में आपका हथ योगा आया। तो हथ योगा का एक है नाथ परंपरा, उनका पहले गुरु कौन है, आदिनाथ जी, जो लॉर्ड शिवा। उनका पहले फाउंडर ऑफ नाथ परंपरा कौन है, ऋषि स्वामी मत्स्येंद्र नाथ। सत्यराम। स्वामी मत्स्येंद्र बच्चन नाथ जी जो है वो अच्छा। फाउंडर है। उनके बाद उनका डिसेबल है, ओके, अम, स्वामी गोरक्षनाथ। फिर उनके जी। बाद आते हैं स्वामी स्वत्मा रामन। स्वामी स्वत्मा रामा के बाद फिर आगे वो ऐसे डिनेस्टी बढ़ा है। तो फॉर्मली अगर हति योगा प्रदीप का जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट उस टाइम में आया था, वो स्वामी स्वत्मा रामन है,
रचना किया था। मे भी श्रुति हो सकता है, मे भी गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने जो नॉलेज है, तब शायद लिखनी था नहीं था, उसको वो स्मृति बना के अपने हथ योगा प्रदीपिका में लिख दिए, जो कि 4 फोल्ड योगा था। ओके, उसमें कितना था? 4 लिम्स। और आपका इसमें गैरहडा संहिता, जो बाद में महर्षि गैरंडा और उनका शिष्य कपाली, उनका बीच का डिस्कशन आ गया किसमें? गैरहडा संहिता में। रश्मि। और हाँ, उसके बाद भी फिर है श्रीनिवास भट्ट जी का हथ रत्नावली, फिर शिवा संहिता, जो लॉर्ड शिवा और उनके माता पार्वती जी के डायलॉग्स को कैप्चर किया गया है उसमें। जी। और इसमें आपको षट कर्मा के बारे में पहले प्रायोरिटी दिया गया, स्पेशली गैरडा संहिता में, कि हमारा शरीर एक घट है, उसीलिए घटस्थ योगा जो है वो गैरडा संहिता में ज्यादा है। घटस्थ योग मतलब क्या है? हमारा शरीर एक घट है, एक पॉट है, उसका अगर अच्छे से क्लींस नहीं होगा तो उसमें एक साफ पानी नहीं रह पाएगा। तो वैसे ही हमारा मन अगर शांत होकर हायर प्रैक्टिसेस, डीप मेडिटेशन करना है, षट कर्मा बहुत जरूरी है। वो उन्होंने बताया था, जो कि नेति, बस्ती, धोती, नौली क्रिया, देन अग्निशार क्रिया एंड कपालभाति त्राटका। अग्निशार क्रिया ने हाँ, नौली क्रिया, कपालभाति, त्राटका। त्राटका आई क्लिनसिंग के लिए, ओके। आपका कपालभाति ओवरऑल मतलब डाइजेशन के लिए अच्छा है, फोरहेड शाइनिंग, क्योंकि ब्रेन का क्लेंसिंग करता है, उसीलिए उसको कपाल भाति बोले। प्राणायाम में भी है। फिर नौली क्रिया, जो एब्डोमिनल चर्निंग, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे आंथड़ों में, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गंदगी रह जाता है, तो उसको जब आप चर्न करते हो, वो सब गंदगी को निकाल के आपका स्टूल में निकाल देगा। तो वो एक हेल्प, डाइजेशन के लिए भी एक्टिव कर देता है। तो कपालभाति नौली क्रिया आपका जठराग्नि को एक्टिव करता है, तो उससे क्या होगा? खाना अच्छा पचेगा तो वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। फिर बस्ती धोती, आपको पता है बस्ती में हम लोग का क्या है? ये होता है कोलन क्लीनिंग होता है। और धोती में आपका एक कपड़े को पूरा रोल करके अंदर पूरा एब्डोमेन तक जाके फिर निकालते हैं। तो खाली पेट करना है। अगर अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं बहुत अच्छा, पहले दिन अर्ली डिनर कर लेंगे तो नेक्स्ट डे सुबह मलमूत्र सब त्याग करके एक गुड वेदर होगा, आपका शरीर भी ठीक होगा, अल्सर वगैरह नहीं होगा, तो वो सब कर सकते हैं। तो इस षट कर्मा के बारे में यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दें। नीति, अगर आपका नेशनल क्लीनिंग हो रहा है, प्योर ऑक्सीजन जाएगा और आपका प्राणायाम प्योर लेवल में होगा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा किसमें? आपको ओवरऑल आपको एक हेल्प कर देगा डीप मेडिटेशन के लिए, क्योंकि पूरा दोनों नेशनल में पूरा अपर तक टच होके आएगा। तो इसीलिए नेति एंड उसमें जल नेति है, सूत्र नेति है, ओके, घी नेति है, ये सब करते हैं लोग। सो जल नेति सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। तो ये सब क्यों करना चाहिए था? क्योंकि शारीरिक शुद्धि होगा तो तब आपका प्राणा बैलेंस होगा, मेंटल प्योरिटी आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा टच करेगा, और आपका साधना बेटर होगा। और हठ योगा प्रदीपिका में कितना आसन के बारे में बताया गया था? 15। 15, यस। और गरुड़ संहिता में 32। 32, गुड, बहुत बढ़िया। जबकि आप अगर थोड़ा याद कर पाएंगे, पहले मतलब जो अपना पतंजलि योग सूत्र, जो क्लासिकल पीरियड में, उस पैन में जो हत सॉरी स्थिरम सुखम आसनम, जो आपका, जी। हाँ, आसन के बारे में बताए उनका 8 लिम्स में, लेकिन उन्होंने वो आसन को बोला जो स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक लंबा बैठ पाए, शरीर को पीड़ा ना पहुंचे। तो वो एक्चुअली कौन कौन सा आसन था? सुखासन, सुखासन, पद्मासन, हाँ, आपका पद्मासन, फिर आपका वज्रासन। वज्रासन, सिद्धासन, ओके, दंडासन, ओके, भद्रासन। भद्रासन वगैरह नहीं, लेकिन ये 4 कैटेगरी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, 4 5 को। तो सुखासन, पद्मासन, दंडासन, वज्र वज्रासन और सिद्धासन, डीप मेडिटेशन। सिद्धासन। हाँ, तो ये सब का आराम से आप बैठ पा रहे हो, उस पोस्चर को वो स्थिरम सुखम आसन बोले थे, जिसमें आप लंबे टाइम बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। स्पेशली सिद्धासन बहुत रिकमेंडेड है फॉर लॉन्ग मेडिटेशंस। उससे आपका क्या होता है? लेफ्ट लेग को फोल्ड करके, लेफ्ट का जो हील है, हील पोर्शन, वो आके टच होगा आपका पेरिनियम रीजन में, मूलाधार चक्र के पास, एंड उसके ऊपर रहेगा राइट। तो वो वाला आपको बैक भी स्ट्रेट करेगा, प्राण का ऊपर फ्लो करेगा, तो उसके ऊपर ज्यादा बहुत जगह बताया गया। खाने के बाद वज्रासन जो है,
वो एक बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पिंडली दबता है, और पिंडली में मतलब आपका काफ मसल में बहुत ज्यादा खून होता है। वो जब पंपिंग होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, आपका ओवरऑल डाइजेशन प्रोसेस एक्टिव हो जाता है। तो आजकल वेस्टर्न टॉयलेट में नहीं बैठ के, हमारा वे इंडियन टॉयलेट की तरह नहीं बैठने की वजह से लोगों का पिंडली नहीं दब रहा है, तो इसलिए फिर बहुत ज्यादा वज्रासन करवा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि पतंजलि योग सूत्र में आसना के बारे में नहीं बताया, उसमें भी बताया गया, लेकिन हठ योगा एंड गैरेटा संहिता स्पेसिफिकली मयूरासन, कोई एडवांस आसन, जो एनिमल का पोस्चर्स है, डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग, ये सब क्या है, वो सब एक एक एनिमल पोस्चर है, उसको ये लोग अपने दिनचर्या में लाए, और इसके वजह से हमारे पूरा बॉडी का एक्टिवेशन हुआ, और हमारा बॉडी, एनिमल बॉडी, हमारा बॉडी का सबका डाइजेशन सिस्टम सेम था ऑलमोस्ट, मतलब स्पेशली वेजिटेरियन सिस्टम में अगर देखेंगे, उनका हमारा सबका एक ही प्रोसेस था। तो उसको रिजेंबल करके हमारा लाइफ में लाया गया, और वो जब अप्लाई हो गया लाइफ में, देन आपका क्या हुआ, अच्छा रिजल्ट आने लगा लोगों को, इससे आपका शरीर का शुद्धि हुआ, ईच ऑर्गन का हुआ। तो उसीलिए हठ योगा में, आयुर्वेदा में, सब में, ओके, आपका नेचुरल वेजिटेरियन डाइट, सात्विक डाइट, पत्ते आहार, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि आवर इंटेस्टाइन्स आर डिजाइन टू होल्ड सम फूड फॉर 3-4 आवर्स। आपको खाना खाने का 3-4 घंटे में जो न्यूट्रिएंट्स जाना है जाना है, और बाकी मल में आ जाना है। अगर वो मल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो अगर ऑन ए डेली बेसिस वो एग्जिट नहीं हो रहा है, तो आपका शरीर शुद्ध ही नहीं है। तो इसीलिए वो चीजें, वो प्रोसेस बताया जा रहा था पहले कि इट शुड बी प्रॉपर। क्या है, मिताहार ही खाएंगे, पत्याहार खाएंगे, सात्विक आहार खाएंगे, प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे। ओके, वो सब इसलिए डिजाइन था कि उसके ये में, मतलब उसका रूल फॉलो करने से आपका जो नेचर है, मतलब जैसे आप बोलोगे सर मैं तो मटन खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, तो खा रहे हो ठीक है, लेकिन एक एक कार लाया हूँ, दैट इज ए पेट्रोल कार, उसमें डीजल डालूंगा तो गाड़ी चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इंजन में प्रॉब्लम होगा, पूरा इंजन जाम हो जाएगा। बहुत लोग ना, मैं यहाँ रूरल में देखा हूँ, एक आप सुने हो, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहले था किरोसिन बोल के, जो बत्ती जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्टोव वगैरह में डालते थे पहले। अभी तो नहीं यस है सर। इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट इट्स नाउ क्लोज्ड फ्रॉम मोर देन ए डिकेड, लेकिन पहले वो था, एक किरोसिन बोल के एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, सस्ता था। तो मुझे जितना याद है 10 years बैक अराउंड 40-45 रुपीज था। अ, तो अभी तो सुना है नहीं बट है। देखा सॉरी मैम। नहीं। सुना हुआ है सर, देखा नहीं। हाँ, तो वो कुछ नहीं है, पेट्रोलियम का और थोड़ा अनप्यूरिफाइड वर्जन, मतलब पेट्रोलियम डीजल सब निकलने के बाद जो बचता है वही, वो लालटेन में, पहले ना जब ये चार्जिंग लाइट वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लालटेन में डालने के लिए डिब्बी बोलते हैं ना, जो एक बोतल में वो डाल के एक कपड़े से एक छोटा सा ये करके उसको भी जलाते थे। तो उस टाइम में केरोसिन का बहुत रिक्वायरमेंट था, और खाना पकाने के लिए स्टोव वगैरह में भी वो पहले जलता था, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उसका व्यवहार बहुत ज्यादा था। उसके बाद भी मुझे जितना पता है, 2 डिकेट्स पहले, 3 डिकेट्स पहले उसका व्यवहार बहुत ज्यादा था रूरल में। अभी सब जगह इलेक्ट्रिसिटी चला गया, इलेक्ट्रिक लाइट्स, चार्जिंग लाइट्स वगैरह आ गया, तो अभी कहीं भी उसका ज्यादा यूज नहीं है। सो क्या बताना चाहता था, क्रिएशन का टॉपिक क्यों लाया मैं, सॉरी। आप बता रहे थे हमारे बॉडी में फ्यूल डालने के लिए, अगर हम हाँ, हाँ नॉन वेज। करेक्ट। हाँ, तो अभी जैसे वो क्रिएशन का मिस यूटिलाइज हो रहा था तब, वो क्रिएशन क्या मिस यूटिलाइज हो रहा था, कुछ लोग उसको ट्रक में डाल देते थे और ट्रक चला देते थे, ट्रक तो चलता था लेकिन बैक साइड से बहुत धुआं निकलता था, और ड्राइवर क्या कर रहा था, जब वो 10 रुपीज ऐसे था, पहले तो मुझे पूरा पुराना प्राइस नहीं पता, लेकिन मुझे एक टाइम का प्राइस पता है, जबकि 10 रुपीज, 17 रुपीज ऐसे कुछ करते थे, जबकि डीजल और पेट्रोल का रेट अराउंड 60-70 रुपीज, 80 रुपीज ऐसे था, अराउंड अराउंड 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा था। तो ये लोग ओनर से लाते थे पेट्रोल का पैसा या डीजल का पैसा, और डाल देते थे केरोसिन। तो क्या हो रहा था, वो ड्राइवर तो 1-2 साल करके छोड़ के चला जाएगा, धुआं जो निकला, पहले ज्यादा गाड़ी नहीं थे या थे, लेकिन कोई ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ लिया कुछ फाइन दे देते थे, तो मैनेज कर लेते थे। लेकिन बहुत दिन के बाद
एक अंदर का ट्रक का और उसका मशीनरी का एक पार्ट चेंज करना पड़ता था, क्योंकि उसका एग्नेस्ट हम चले गए। तो कहीं ना कहीं धुआं निकल रहा है, कहीं ना कहीं साउंड ज्यादा हो रहा है, और पिकअप है एक ट्रक का, उसका एक इंजन का एक पिकअप है, लेकिन उसका प्रॉपर फ्यूल नहीं देंगे तो क्या होगा, वो दिक्कत करेगा आपको। लाइक घाटी चढ़ने में वगैरह घे 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 करके चढ़ेगा, तो वो सब दिक्कत हो रहा था। तो वही सेम चीज हमारे लिए एप्लीकेबल है। हमारा प्योर प्लांट बेस्ड फूड के लिए, नेचुरल फूड के लिए 3-4 घंटे में पच जाना है, बाहर निकल जाना है, वैसा था। लेकिन उसको हम लोग वायलेट करके नॉनवेज में इसमें उसमें की तो प्रॉब्लम क्या होगा, पसीना में बैड स्मेल आएगा, अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट होगा। क्यों? आपके लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्डोमेन में, कहीं ना कहीं वो मटन, गो मांस, वो सब 72 आवर्स से और ज्यादा लेता है पचने के लिए। रफली 72 आवर्स, आई हर्ड फ्रॉम मल्टीपल टेक्स्ट। तो 72 घंटा अगर रफली एक पर्सन को लग रहा है खाना पचने के लिए, जो कि हमारा रिकमेंडेड है 3 to 4 आवर्स, एक अलग चीज डाल दिए तो हमारा बॉडी का एक नेचर है फंक्शनलिटी का, उसका विरोध में चले गए कि नहीं हम। ओ, अगर मैं कुछ और चीज खा लिया कभी कभार, दिक्कत होगा। जैसे कि शेल का पेट्रोल है, बहुत प्रीमियम पेट्रोल है, वो डालने से शायद मुझे पेट्रोल का रेट में 10 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है या 4-5 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ गाड़ी का इंजन ठीक है, माइलेज थोड़ा ज्यादा दे रहा है, तो इनडायरेक्टली देख रहा हूँ दैट इज चीपर फॉर मी। क्यों? मेरा गाड़ी का इंजन का अच्छा लाइफ रह रहा है। वही सेम चीज यहाँ भी, अगर आप सात्विक आहार खाएंगे, सीजन अलाइंड खाना खाएंगे, मिताहार खाएंगे, खाना अच्छे से पचेगा, आपका इंटेस्टाइन में मूवमेंट रहेगा, खाना आ गया 3-4 घंटे में पच गया, वो चला गया, रस जो चला गया वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब के लिए चला गया, आहार रस या प्लाज्मा। तो बाकी जो है वेस्ट में धीरे धीरे कन्वर्शन हो गया, और ऑन ए डेली बेसिस एटलीस्ट 24 आवर्स में 2 बार आपका बावल एम्प्टी हो रहा है। एक 8-10 बार यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है। एक रोज एक मिनिमम स्वेटिंग हो रहा है, तो उसका मतलब है आपका बॉडी फिट है। और अगर वो उसमें कहीं कुछ चैलेंज है, तो जठर अग्नि में डिस्टर्ब है, या जठर अग्नि अगर मंद अग्नि हो गया दिक्कत होगा। अगर वो सम अग्नि हुआ अच्छे से पचेगा, तो दैट इज आवर नेचुरल साइकिल। तो ऑटोमेटिक, फॉर एग्जाम्पल मैं स्मॉल एक चीज बोल रहा हूँ, अभी एक वाटर बॉटल है मेरे पास, ओके, अभी बहुत गर्मी है, मुझे कोई मोटिवेट करना है पानी पियो बोल के? हेलो? नो सर। क्यों? मैं क्लास बोल रहा हूँ तो मुझे ही प्यास लगेगा, और बाहर जी, अभी गर्म लग रहा है, स्वेटिंग, ऑटोमेटिकली। हाँ, स्वेटिंग हो रहा है, तो ऑटोमेटिक मैं पानी पीऊंगा। लेकिन विंटर में मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? अगर 8 से 12 ग्लास का जो एक एक बेसिक रिकमेंडेशन है बड़े ग्लास में, उतना अगर नहीं पियेंगे, मतलब रफली 2.5-3 लीटर पानी अगर नहीं जा रहे ओवरऑल, वो जूस के फॉर्म में हो, ढाब का पानी हो, बटर मिल्क हो, आपका अलग कुछ कुछ सूप हो, किसी भी एक फॉर्मेट में, और पानी भी नेचुरल पानी भी, सब मिलके एक 2.5 से 3 लीटर लगभग, एक इतना साइज का ग्लास, एक 8 to 12 ग्लास, उतना आपको ओवर ए डे जाना पड़ेगा शाम तक। उतना अगर जा रहा है तो योर बॉडी इज क्लींसिंग प्रॉपरली ओनली। आयुर्वेदा में ये बताया गया, खाने का इमीडिएट बाद ज्यादा नहीं पीना चाहिए, खाने का आधा घंटा 45 मिनट पहले पानी पी लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव फायर एक्टिव रहेगा और अच्छे से खाना पचेगा। ओनली ड्राइनेस और हिचकी है तो 1-2 घुट पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, एटलीस्ट 45 मिनट्स ऐसे। क्यों ऐसे बोलते हैं? 47-48 मिनट्स, एक घट, वो एक घट का लॉजिक कुछ 43 या 48 मिनट्स। तो वो 48 मिनट्स क्यों नहीं पीने के लिए बोलते हैं, तो डाइजेस्टिव फायर का उसका खुद का कुछ कुछ प्रोसेस है। अगर हम उस टाइम में ये पानी वगैरह पी रहे हैं, स्पेशली कोल्ड वाटर वगैरह, फ्रिज का पानी, वो सब पी रहे हैं, बहुत नुकसान करता है, विष का बराबर बोला गया। तो वो सब चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिनली कर रहे हो, आपका बॉडी ठीक रहेगा। तो एक है, देखिए, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा मिताहारा से, प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हैं तो मेंटल प्यूरिटी है, अच्छे से खाना पचेगा, एंड यू आर अलाइंड, मतलब जिसके लिए आपका चीज था उस चीज के लिए आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये फोन मेरा स्पेशली बना है फॉर बात करने के लिए, या एक स्मार्टफोन है, आई कैन डू सम बेसिक इंटरेक्शन यूजिंग इंटरनेट एंड कुछ ऐप वगैरह है, कुछ कुछ बैंकिंग चीजें, वो फेसबुक आपका, ये सब कर सकते। उसका अगर मैं और कुछ अलग यूज करूंगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा ज्यादा, दैट इज डिजाइन फॉर समथिंग, ओके, उसको मैं कुछ अलग यूज करूंगा, तो बेनिफिट नहीं देगा। अगर मैं हॉटस्पॉट्स का काम मोबाइल में ज्यादा करूंगा, तो क्या होगा, फोन गर्म होगा, उसका अ, मतलब जो क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस आ जाएंगे,
डिफरेंसेस आ जाएंगे, आपका फोन को लोड बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके लिए दिक्कतें बढ़ेगा। तो उसीलिए जिसका जो मेजर थिंग है, मैं एक बाइक खरीदा हूं, दैट इज ओनली फॉर माई कम्युनिकेशन। उसमें मैं अगर और अलग कुछ काम करूंगा, थोड़ा बहुत हेवी चीजें लोड करूंगा, वो रिकमेंडेड है 2 लोगों के लिए, उसमें मैं 4 लोग बिठा के लेके आऊंगा, तो क्या होगा, उसका शॉक ऑब्जर्व है, गाड़ी का एक स्ट्रेंथ है, गाड़ी का एक रिकमेंडेड चीज है, थोड़ा बहुत वायलेशन इधर उधर थोड़ा मैनेज हो जाएगा। जैसे एक छोटे से बच्चे को एज ए थर्ड कैंडिडेट बिठा ली, थोड़ा चल जाएगा। लेकिन गाड़ी का एक लिमिट है कि इट कैन टेक मैक्स 2 क्विंटल, नहीं तो 180-160 केजीज का कैपेसिटी है बेसिक बाइक का। अगर उसमें मैं 3 लोग 4 लोग लाद दूंगा और मैं 200 से ज्यादा दूंगा, तो क्या होगा, सकब्जर टूट जाएगा, कहीं ना कहीं गाड़ी का अलग पार्ट्स में इश्यू आएगा, पिकअप घट जाएगा, गाड़ी का इंजन के ऊपर लोड बढ़ेगा। तो वो सब क्या है, रिस्क भी है, कोई अप एंड डाउन रूट में रिस्क भी है, और जो 4 बैठे हैं सबके लिए वो चैलेंज करेगा। क्यों, इंजन गर्म होगा, घींच नहीं पाएगा, उसका 4 गियर में उसका पिकअप एंड ऑल डिजाइन क्या है, टू मैक्सिमम एक 150 to 200 केजीज को मूवमेंट करने के लिए। उससे ज्यादा करेंगे तो माइलेज कम देगा, इंजन पे लोड बढ़ेगा सब। तो सेम चीज यहीं भी, हमें मिताहारा खाने का डिजाइन है, प्लांट बेस्ड डिजाइन है, 3 से 4 घंटा, कफ प्रकृति को थोड़ा ज्यादा, पित्त प्रकृति को जल्दी। तो उस रूल को हम मानेंगे, ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। तो हथ योगा ये बोल रहा है, योगा प्रैक्टिस में प्राणा बैलेंस होना है, मेंटल प्यूरिटी सात्विक फूड से, नेचर एलिमेंट खाना खाएंगे तो नेचर के साथ जो जुड़ा है उसका अच्छा रहेगा। वात पित्त कफ है, तो उसका हिसाब से मेरे शरीर में सपोज कफ प्रकृति है, मैं उसके हिसाब से आसन करूंगा, उसके हिसाब से खाना खाऊंगा, ऋतुचर्या में उसका जो जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उस फैक्टर को केयर करूंगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरा बॉडी ठीक रहेगा। एंड घट अगर शुद्धि हो गया, घटस्थ योगा मीन्स आई कैन डू एडवांस आसनास। सो दिस ऑल, हति योगा, प्रदीपिका, गरुड़ा संहिता, ओके, हत रत्न सब एम्फोसाइज कर रहे हैं एक डिसिप्लिन डाइट और एक अच्छा लाइफस्टाइल। सो उसको हम लोग युक्ताहारा भी बोल रहे हैं भागवत गीता में। मिताहारा के साथ युक्ताहारा मतलब 8 घंटे का रेस्ट, 8 घंटे का वर्क, 8 घंटे का रेस्ट, रिलैक्सेशन, अदर एक्टिविटीज। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मथा, ओके, मठा क्या है, तो आप कहीं सुने हैं कि नहीं, वेलूर मठ, विवेकानंद मठ, रामकृष्ण मठ, ऐसे नाम सुने हैं इंडिया में? बहुत सारे मठ है, मैं जितना सुना हूँ बोल दे रहा हूँ। नहीं सर, मैंने नहीं सुना। ओके, मठा इज लाइक ए स्मॉल आश्रम। स्मॉल आश्रम मतलब जब मैं व्यवहारिक लोक में परिवार के अंदर रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, कुछ प्रैक्टिसेस में नहीं कर पाता हूँ इजीली, तो क्या करते हैं, कुछ कोर्स करने के लिए आश्रम चले जाना, कोई मठ में चले जाना, नहीं तो मठ में कुछ डिसिप्लिन योगी लोग रहते हैं, उनके बीच में हम लोग जब जाते हैं ऑटोमेटिकली हमें इजी हो जाता है। ओके, तो मठा मीन्स आप बोल सकते हैं एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्लेस, एक मिनी आश्रम, एक पोर्टेबल आश्रम बोल सकते हैं। क्या है, मठ में अगर आप जाएंगे, डिसिप्लिन लोग रहेंगे, वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, वो कैंपस ग्रीनरी रहेगा, पीस रहेगा, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में या थोड़ा दूर रहेगा जहाँ शांत एंड पॉजिटिव लोग, आशा बाबा लोग रहते हैं, ओके, सन्यासी लोग रहते हैं, ओके, आपका योग का प्रैक्टिशनर्स लोग रहते हैं, जो कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेसेस मानते हुए नॉलेज के ऊपर वर्क करते हैं, वैसे लोग रहते हैं। तो मठा मीन्स मोनास्टरी, हर्मिटेज और रेसिडेंस ऑफ योगीस, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन कुछ कोर्स कर रहे हैं, जो लोग कुछ पद्धति में रह रहे हैं, समाज में नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग एक गुड एनवायरमेंट पाने के लिए वहां चले जाते हैं। जैसे हम लोग हॉस्टल चले जाते हैं मल्टीपल रीजन्स के लिए। एक रीजन है, पहले मेरे गांव में नहीं है ग्रेजुएशन, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अगर बाहर जा रहा हूँ, कॉलेज का कैंपस का हॉस्टल में रहना बेटर है। क्यों, चीपर होगा पहले, गवर्नमेंट का हॉस्टल है तो गवर्नमेंट का बेटर देन मार्केट कॉस्ट, पहला। एक आप एक एजुकेशन एनवायरनमेंट और कैंपस के पास वॉकेबल डिस्टेंस में रह रहे हो, खाना पीना वहीं मिलेगा आपका, प्रॉपर सब एक वन माइंडेड पीपल रहेंगे। वो हॉस्टल में जो रहेंगे, सपोज मैं एक बॉयज हॉस्टल में रह रहा हूँ, सब एक ही ध्येय है, क्लास करना, वहां रहना, रेस्ट लेना, पढ़ाई करना, और खाना पीना जो देंगे वो खाना, सब एक पैरेलल लाइफ जी रहे हैं। तो मठ भी ऐसा है, जब मैं एक योगी हूँ, ब्रह्मचार्य पालन कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो परिवार में थोड़ा चैलेंज हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मठ में भेज देते हैं, वहां बाय डिफॉल्ट होमा रहेगा। जैसे मैं आपको एक छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे रहा था, कोरबा बोल के एक प्लेस था, कोरबा से थोड़ा दूर एक कुसमुंडा बोल के एक प्लेस था, तो मैं रोज वहाँ गायत्री परिवार का यहाँ जाता था। तो कुछ दिन के बाद वहां का गुरु लोग बोले, यू आर वेरी गुड एट योगा, आप योगा का टीच करो।
मैं बोला नहीं सर आप कीजिए मैं देखता हूँ। वो बोले नहीं मैं कल से नहीं आ पाऊंगा, तुम थोड़ा सिखाओ, मैं 20-25 दिन के बाद आऊँ। और योग गुरु मुझे हैंड ओवर की। तो बाकी सब क्यों एक्सेप्ट किए? उन्होंने मुझे वो ऑथराइज दिया कि तुम पढ़ाओ। तो इवन इफ स्टूडेंट सीनियर थे वो लोग मुझे ग्रहण किए, पहला। दूसरा, सब में हमारा दोस्ती हो गया, अच्छा हो गया। तो रोज जाके सिखाने लगा। मेरा वे ऑफ टीचिंग उनको पसंद आया। तो वो लोग ना बार बार बुलाने लगे, भीड़ बढ़ने लगा। वो हॉल में पहले 2-4 जन थे, धीरे धीरे 7-8 हो गए। फिर और बढ़ बढ़ के एक, मुझे एक टाइम पे याद है, एक 15-16 जन, 20 जन तक आने लगे। तो उसके बाद ना, जो उस कैंपस में आते थे घूमने, एक पार्क था एक्चुअली, कांटे वाला टाइल्स था, कांटे वाला मतलब थोड़ा ट्रायंगल शेप का होगा, उसके ऊपर सब नंगे पांव चलते थे। तो बेयर फुट चलने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता था। और एक बटन वाला टाइल भी था, उसमें चलते थे। एंड वो योगिक पार्क था, आयुर्वेदा पार्क था। उसमें सब प्लांट्स आयुर्वेदिक रिलेटेड सब था। तो उसमें घूम के आने के लिए मजा लगता। सब देखे कि कुछ साउंड हो रहा है, ये लोग कुछ हा 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 कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो लोगों का भीड़ बढ़ने लगा, अच्छा लगा। तो उस कैंपस में होम हो रहा था, तो मैं जाकर होम में बैठने लगा। तो कर्मकांड सीख गया थोड़ा। तो उसमें जब होम वगैरह किया, मंत्रों का उच्चारण रोज रहे, डे पॉजिटिव गया। और उसमें एक जगह एक स्मॉल स्टोर था, वो सेवा के लिए रखे थे, दैट इज नॉट कमर्शियल। प्योर 5-7 पत्तों को मिला के एक जूस बना के देते थे, पत्ते वाला। आ, ओ कभी आंवले का जूस और उसमें कुछ पत्ते, कभी तुलसी का जूस उसमें आंवला नीम, कहीं कुछ एक जिंजर के साथ और 3-4 ऐसे करके 8-10 टाइप का जूस, 12-13 टाइप का जूस नेचुरली हमारे सामने मिक्सर में चलाएंगे देंगे, और उसी पार्क से ले लेके आएंगे मिक्सर करके। एंड यू नो, मैं लास्ट ईयर का ही बोल रहा हूँ, नॉट इवन वेरी ओल्ड। 2025 में 10 रुपीज लेते थे। आजकल इंडिया में कहीं 10 रुपीज में जूस मिलता है क्या? लेकिन वहां सेवा के लिए वो लोग देते थे, मतलब उनको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हल्का खर्चा है, उसी वो सेवा के लिए देते थे। और वो सर एक वो भी ग्लास सुबह, इतना नेचुरल। हाँ पूरा प्योर नेचुरल फ्रेश पत्ते हमारे सामने आएंगे, पीसेंगे, कभी नीम के, कभी मतलब उसमें भी 8-10 टाइप का जूस था। सब पीने लगे। तो वो जब मैं पी रहा था होल डे, हाँ, मेरे में एक फ्रेशनेस था, क्योंकि वो नेचुरल है। तो आप ऐसे कैंपस में रहोगे, आप योगा भी करोगे और आपका मन शुद्धि होगा, सब मंत्र भी सीख जाओगे। क्यों? सब डिसिप्लिन वे में ही रहते हो। तो मठा इज दैट। सो इट इज अ प्लेस, आइडियल प्लेस फॉर योगिक प्रैक्टिस। ओ ओ गायत्री प्रज्ञापीठ था वो, प्रज्ञापीठ। तो रोज होम हो रहा था, कर्मकांड सीख गया, मंत्रा सीख गया। फिर दीक्षा ले लेंगे तो लोग मंत्र जाप करते थे, तो उनको योगा पसंद आता था सुबह। और मैं पहले से गायत्री जी का दीक्षा लिया हूँ, माँ गायत्री का मेरे स्कूल टाइम में ही ले लिया था। तो उस हिसाब से मंत्र आते हैं, कुछ अलग मंत्र आते हैं, योगा में भी काफी टाइम से हैं, घर से सीखे हैं। तो और अच्छा लगा मुझे वो जगह, जबकि प्लेस थोड़ा न्यू था मेरे लिए। एक डिस्ट्रिक्ट टाउन से लगभग एक मान के चले 20-25 मिनट का दूर का जगह है। तो थोड़ा थोड़ा छोटा जगह है, बट मेरे लिए अच्छा लगा। तो मेरा होल डे वर्क में भी अच्छा लगा। मैं एक इंटर्नशिप गया था, तो इंटर्नशिप अच्छा लगा, स्पिरिचुअल लगा। इवनिंग में भजन कीर्तन हो रहा था। मैं रोज नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन जब भी पहुंच रहा था अच्छा लग रहा था। फिर लोग उसमें भी रिक्वेस्ट करने लगे कि सैटरडे संडे आइए सर एटलीस्ट, लेकिन आइए शाम को भी, आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंडशिप हो गया पूरा, आज तक सब टच में है, टच में है। आगे भी जाऊंगा तो फिर से वेलकम करेंगे। तो दैट्स व्हाट, मतलब एक अच्छा जगह मिल जाएगा तो सब एक टाइप के लोग अगर मिल जाएंगे, सब योगा में है, सब स्पिरिचुअलिटी में है, कर्म कांड में है, उनका बहुत सारा प्रोसेस होता है, सेवा का बहुत काम होता है, और वो कैंपस पूरा ग्रीनरी होकर मजा आ रहा था। तो उसके बाहर जाने से व्यवहारिक लोग, उसके अंदर जाने से स्पिरिचुअलिटी। 3 टेम्पल था अंदर, शिवलिंग करके एक शिव जी का टेम्पल था, एक जगह माँ गायत्री का और उनका रिलेटेड टेम्पल था, एक जगह गणपति जगह। तो हर जगह हम लोग पूजा भी करते थे, सब करते थे। तो मेरा हर डे सुबह एक 3 घंटा वहां रोज कटता था। और मैं सुबह चले जाने वाला 9 बजे के बाद ही आता था वहां से। तो बड़े बड़े लोगों से दोस्ती हो गया, जो कि एज वाइज मेरे से बहुत बड़े हैं, बट सबसे दोस्ती हो गया था, सबको अच्छा लगा। और मैं तब AYTT बोल के पतंजलि का एक टीचर्स ट्रेनिंग 6 महीना कंप्लीट किया था। कंप्लीट नहीं किया था लेकिन कर रहा था। तो ऑलमोस्ट उसके चीजें भी उनको बताने लगा, सिलेबस का चीजें, आपका YCB का चीजें बताने लगा। लोगों को अच्छा लगा, सीख गए। कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास दे दो, तो जुड़ते हैं तो दे देते हैं, समय होगा तो जुड़ देते हैं, तो वीकेंड में भी जुड़ते हैं। तो
दैट सेम थिंग हैपेंस फॉर यू। अगर आप आपके लाइक माइंडेड पीपल एक जगह रहेंगे, सबका ध्येय एक होगा, तो उस जर्नी में आपका प्रोग्रेस ज्यादा होगा। तो मठ वही है। तो आप नहीं सुने होंगे मैम थोड़ा बहुत, इफ यू आर फ्रॉम पंजाब और दिल्ली, रामकृष्ण मठ है, विवेकानंद मठ है, विवेका मठ है। हाँ, कुछ जगह बोलते हैं माँ दुर्गे का मठ, गायत्री मठ, कुछ जगह। आश्रम सुना है बट ऐसे मठ वर्ड नहीं सुना था। हम्म। और इवन मैं एक बार हैदराबाद में था, मैं एक रामकृष्ण मठ बोल के वहाँ नेकलेस रोड में उसके पास था, उसका आजू बाजू में मेरे कजिन के साथ एक गया था। वाओ, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। सब स्पिरिचुअलिटी में है, हम्म। सबका ड्रेसिंग सेंस अलग है, जो वहाँ का परमानेंट लोग जो चला रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, व्यवहारिक लोग से नॉर्मल कपड़े वगैरह पहने हैं, लेकिन सब इसी लाइन में आ जा रहे हैं कि वो जगह में जाने से घूमने के लिए कैंपस अच्छा है। ओ, हॉल में जाएंगे तो कुछ कर्म कांड होता रहेगा, और एक हॉल में जाएंगे तो योगा होता रहेगा, और कहीं कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस होता जाएगा। तो बढ़िया है। बेंगलोर में भी एक आउटस्कर्ट्स में एक जगह गया था, वो पूरा गुरुकुल ही है। तो वहां जाने के बाद ना, योगा एंड ऑल उनका ब्रह्म मुहूर्त में खत्म ही हो जाता है। पर मतलब 6-6:30 इज लाइक उनका 2 घंटे का रूटीन, 3 घंटे का रूटीन खत्म ही हो जाता है। तो वहां पढ़ने का, वहां का माहौल, वहां का शांत शिष्ट, वहां का खाना, प्याज लहसुन भी नहीं मिलेगा। मैं जानबूझ के उनको रिक्वेस्ट किया, घूमने गया था एक्चुअली में। मैं बोला कि आज लंच मेरा बाहर अरेंज है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ खाऊंगा। बहुत खुशी से बुलाए। वो शिष्य लोग जो थे, गुरु जी का शिष्य लोग, जो वहां पढ़ाई भी करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते ही वो लोग रहते हैं, क्योंकि उनको रूरल एरिया से लाके उस आश्रम में रखा गया फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड ऑल। पूरा प्रॉपर ओल्ड गुरुकुल व्यवस्था में वो लोग पढ़ रहे हैं, सब धोती प्रॉपर पढ़े हैं, सब प्रॉपर कर रहे हैं। उनका अन्न में देखा, सिंपल, प्याज लहसुन नहीं था, बहुत टेस्टी था। एंड ये बोल सकते हैं, ज्यादा ना स्पाइसी था, ना ज्यादा नमक था, ना कुछ क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करने वाला कुछ नहीं था। घी था कुछ, जो मिल्क आइटम रहना है, तो मिल्क आइटम के हिसाब से भी सब नेचुरल चीजें था। एंड मुझे जितना लग रहा है, वो चावल वगैरह भी शायद उनका खुद का वहाँ का प्रोडक्शन ही है शायद। तो सब ऑर्गेनिक खाना था। तो मैं जो 2-3 घंटा वहां स्पेंड किया, 4 घंटा, बहुत बढ़िया लगा। और गुरु जी से भी थोड़ा बात की, तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें हमें बताई, तो बहुत बढ़िया लगा। तो दैट इज द रियल गुरु शिष्य परंपरा। आज की कलयुग में इतना बड़ा मेट्रो, बेंगलुरु भी एक बहुत बड़ा सिटी है, उससे अगर 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बाहर अगर इतना बढ़िया चीज है, मुझे पता ही नहीं था। तो मेरा एक दोस्त बोला चलो घुमा के एक बार लेके आता हूँ, तो मुझे बढ़िया लगा। तो मठ वही है। मठ एक स्मॉल एक्सेस है विद इन सिटी, जैसे एक सिंपल अगर बोलेंगे, एक छोटा सा मंदिर टाइप का ही है। नॉट एग्जैक्टली टेम्पल, बट इट्स अ मठ, वेर ओनली फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ब्रह्मचर्य पालन के लिए और यौगिक लोगों के लिए वो बढ़िया जगह है। तो ये पहले बहुत ज्यादा था, आज अर्बन टाइम में सब घट जा रहे हैं। छोटे छोटे गांव में टेम्पल कैंपस, गुरुद्वारा, ओके, मस्जिद, ये सब में वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आजकल कर रहे हैं। तो पहले था मठ, और बड़े जगह अभी भी है, रामकृष्ण मठ, विवेकानंद मठ, वेलूर मठ, ये सब है। फीचर्स ऑफ एन आइडल मठ, ओके, पीसफुल जगह होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हति योगा, योगा प्रैक्टिशनर टू स्टे इन ए प्लेस दैट इज पीसफुल। अगर मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ, पूरा पीसफुल लगेगा, क्लीन, पूरा क्लीन रहेगा एरिया, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस, कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, सिक्योर होगा। क्यों? बाहर के लोग, नेगेटिव एनर्जी उसमें नहीं आएंगे। वेल वेंटिलेटेड, वो तो आश्रम है, खुला खुला रहेगा, तो और बढ़िया है। लेकिन आश्रम एक बिग चीज है, मठा थोड़ा छोटा प्लेस है। वेल वेंटिलेशन होगा एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग, वो जगह में ही इतना आपका स्पिरिचुअलिटी होगा। ऑलरेडी वहाँ जो पोस्टर्स है, डिफरेंट गुरुओं का होगा, डिफरेंट मूर्तियां होंगे। ओके, उसके अंदर जो गुरुकुल भी अगर चलता होगा, मठ में तो नहीं चलता, लेकिन गुरुकुल व्यवस्था भी इक्विवेलेंट टू आश्रम है। तो आश्रम का टाइप जहाँ होगा, ऑलरेडी वहाँ पॉजिटिव लोग रहेंगे। ओके, जैसे श्री श्री आश्रम, पुणे में भी मैं गया था और बेंगलुरु में गया था। तो उस सब एनवायरमेंट में जाएंगे तो सब योगी लोग ही होंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि मैं ऑड मैन आउट हूँ। लेकिन वहां अगर 5-7 दिन कोई एडवांस कोर्स चले चले जाऊं, या कभी कभार वीकेंड में भी चला जाता हूँ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो 2 दिन व्यवहारिक लोग से बहुत दूर, फोन से दूर, खाना पूरा सात्विक मिलेगा आपका। शाम में भजन कीर्तन होगा, सुबह आपका ये होगा, योगा वगैरह, ये सब पूरा 9 तक रहता है। 4 से स्टार्ट होके डिफरेंट डिफरेंट कोर्स, कोई एक प्योर योगा क्लास होगा, कोई मेडिटेशन क्लास होगा, कोई अलग टाइप के कुछ प्रोसेस होंगे, वहां जाके बैठ जाओ, तो वो सब होगा। फिर
खाना पीना हो गया 9 साढ़े 9 को, फिर हम लोग जाके सेवा करेंगे। गो सेवा हो सकता है, किचन का सेवा होता है, मतलब उनका बहुत बड़ा अन्न भंडार है। सब्जियां काटे हैं, कुछ काटे हैं, नहीं तो हमें जो काम दिया, सब्जी बनाए कुछ, नहीं तो मेन कुक जो होगा उनको हम कुछ मदद कर देना। इससे डिफरेंट टाइप चीजें करने करना होता है। खेती भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होता है उसके अंदर, जो इंटरनेशनल आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम वगैरह, पूरा ऑर्गेनिक खेती होता है, उसमें आप सीख सकते हो। हाँ, प्योरली मतलब कुछ भी सेवा दे सकते हो, जैसे खाना भी सर्व कर सकते हैं, मतलब वो 4 लंबे लंबे क्यू और बड़ा हॉल, जैसे गुरुद्वारा वगैरह में हो, तो खाना वैसे कंटिन्यू देते ही रहेंगे। तो जो आएगा वहां एक छोटा सा कूपन कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लेके आएंगे। वो योगी हो सकते हैं, टूरिस्ट हो सकते हैं, बाहर के लोग से जाके अंदर चुपचाप शांत से बैठना है, और आपका थाली आप लोगे, आप खुद खाना, बफेट सर्व होगा, वो लेके आ जाओगे। कुछ कुछ टाइम में स्पेशल ओकेजन में सर्व भी करते हैं रो में। आपको खाना है, आपका प्लेट आपको धोना है, रखना है, बहुत ज्यादा बातचीत अलाउ नहीं है, शांत से खाना और स्पिरिचुअल प्रोसेस में कंटिन्यूस रहना है। तो उसका अंदर खादी भंडार है, उसी के अंदर सब है। तो वो एनवायरमेंट में जब आप रहोगे, पूरा ग्रीनरी है, प्रॉपर है, तो अच्छा लगेगा आपको। मतलब क्या बोलते हैं, दिस मठा एंड ऑल आर बेस्ट फॉर योगिक पीपुल, जिनको स्पिरिचुअलिटी पसंद है। नहीं तो ऑफिस वर्क से एक एक बार थक जाते हैं ना, तो उस जगह में जो चले जाते हैं अच्छा होता है। मेरे दोस्त लोगों को पिकनिक, बहुत ज्यादा टूर वगैरह जाने के लिए था, तो उनके साथ भी मैं जाता था। लेकिन जहाँ अगर शॉर्ट टाइम है, 2 डेज का टाइम है, बहुत दूर नहीं जा सकते बैंगलोर से, उस जगह चले जाते थे। तो उस जगह में जाके 2 दिन स्पेंड करके आने से हमें बहुत रिलैक्स लगता था। एंड संडे शाम को आके सो के मंडे फिर आपका कॉलेज जाओ, ये जाओ वो जाओ, तो उससे क्या होता है, हमें आराम लगता था, बहुत रिलैक्स लगता था, स्पेशली हमारे लिए। तो वही चीज ये हथ योगा में बोल रहे हैं। एंड वाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस इज, मैं तो पूरा डिटॉक्स होके रिलैक्स होके आता था, क्योंकि ना मुझे व्यवहारिक लोक में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। क्यों? वही मूवीज, वही घूमना, वही रेस्टोरेंट जाना, ये सब अर्बन लाइफ से मुझे वो सब अच्छा लगता था, क्योंकि मैं एक रूरल प्लेस से हूँ। तो मेरा नेचर में मैं अपग्रेड नहीं कर पाया अभी तक। तो वो भी एंजॉय करता हूँ विद फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो पसंद नहीं। लेकिन इन सब जगह में जाने से पूरा ब्रेन माइंड रिसेट हो जाता है, बिकॉज विल गेट योर लाइक माइंडेड पीपल वहाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सुइटेबल मठा, क्लीनिनेस, वही शिष्य लोग बाकी लोग सब तो करेंगे, तो साफ रहेगा, जो स्टाफ रहेंगे तो रहेंगे। हम लोग का भी वो कोर्स में पार्ट ऑफ थिंग है, सेवा साधना सत्संग, तीनों करेंगे। कोई क्वाइट एटमोस्फेयर, सिटी से बाहर है, ग्रीनरी है, अच्छा लग रहा है। जैसे अभी रूरल एरिया में भी छोटा छोटा आश्रम हो रहा है, मठ का, मठ से थोड़ा बड़ा, बड़े आश्रम से थोड़ा छोटा, वो सब जगह भी जाएंगे तो कुछ कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस होगा, होम होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा। तो वो सब जगह रहेंगे तो कंसंट्रेशन हेल्प करेगा। मॉडरेट क्लाइमेट, अगर वो जगह में आप रहेंगे, खुला खुला जगह होगा, ग्रीनरी होगा, गो होगा, बहुत होगा, जो आप सिटी के अंदर छोटे छोटे चीज देख पाएंगे, लेकिन उतना विस्तार से नहीं देख पाएंगे। वहां जो होगा, बहुत लोग योगा करते रहेंगे तो वो प्लेस अच्छा लगेगा। अगर भजन कीर्तन में बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो अच्छा लगेगा। सेफ्टी, अब एक लाइक माइंडेड पीपल बहुत लोग हैं, पूरा प्रॉपर एक कैंपस में हो, तो कोई रिस्क नहीं है, सब चीजों का, वॉशरूम का फैसिलिटी होगा, हाँ, कपड़ों का सब सेवा होगा उसमें, तो वो सब आप एंजॉय कर सकते हो। सिंप्लिसिटी एनकरेजेस डिसिप्लिन, सब वहाँ सिंपल, बहुत कम बात करना, चुप चुप रहना, एक प्रोसेस कोर्स में रहना। तो उस जगह आप भी रहेंगे तो पॉजिटिव है। कुछ लोग, कुछ कोर्स में हम लोग को रखा था मौन में, तो मैं एडवांस कोर्स किया था मौन में रहना। तो किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन सबका एक ही ध्येय है, एक टाइम पे जाना है, एक जगह खाना है, एक जगह आना है, एक जगह टाइम पे सो जाना है, कुछ कुछ बेल बजता रहेगा। तो विपासना रिसेंटली गए थे, 9 दिन बात ही नहीं की, फोन नॉट अलाउड, आपका कपड़े आप धो के रखेंगे, आपका ब्रेक टाइम में आप रेस्ट लेंगे, आपके रूम में आप अकेले रहेंगे, और जब बेल बजेगा आपका मेडिटेशन हॉल में आना है। तो बीच में 3-4 घंटे का एक प्रोसेस होने के बाद एक आधा घंटा 1 घंटा प्रोसेस होगा। आपका डिनर प्लेट रेडी है, वहां जाके खाना खाना है, और सब सात्विक होगा, तो ये नो नीड टू टेक केयर एनीथिंग। अगर ठंड हो रहा है, थोड़ा जिंजर पानी मिल जाएगा, अगर अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जिंजर पानी वगैरह मिलेगा, वो सब पियेंगे तो बॉडी का प्यूरिफिकेशन होगा। तो 8-10 दिन में ऑटोमेटिकली आपका मन फिल्टर होके ही आएंगे। विपासना जाके आने के बाद तो ऐसा लगता है प्रॉपरली ब्रेन का पूरा सर्विसिंग होके आया है, पूरा फ्रेश लगेगा। राइट। मिताहारा, मठा के बाद आपका नेक्स्ट है मिताहार, मॉडरेट डाइट, कंट्रोल्ड ईटिंग और बैलेंस फूड इंटेक। तो मिता मतलब मॉडरेट, कम आहार फूड,
तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बार बताया, तो अभी शायद मुझे नहीं लग रहा कि और डाउट होगा। फिर भी एक बेसिक डेफिनेशन मिताहार का: अल्पाहार, सात्विक आहार, पथ्य आहार, आपका शरीर के प्रकृति के हिसाब से, सीजनरी प्रकृति ऋतुचर्या के हिसाब से खाएंगे। और वो फ्रेश फूड होगा, उसमें गव्यम सुगंधम, ओके, आपका सुमधुरम, मन को सुगलित करने वाला वो मिताहारा। 1/4 आपका खाली पेट छोड़ देना है, हाफ खाना खाएंगे सॉलिड, 1/4 अगेन लिक्विड। और वो कितना खाएंगे, मतलब आपका हाफ ऑफ द कैपेसिटी सॉलिड खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी क्या होगा डाइजेशन के लिए, और जो थोड़ा लिक्विड लिए उसके लिए, तो ऑटोमेटिक आपका क्या आराम लगेगा, जल्दी पचेगा, 2-3 घंटा में पचेगा, डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। और मिथाहार से आपका जठराग्नि एक्टिव रहेगा, तो ऑटोमेटिक वेस्ट एलिमिनेशन वगैरह ठीक रहेगा, और हेवीनेस नहीं होगा, तो लेजीनेस भी नहीं आएगा। तो इन दैट में मिथाहार इज वन ऑफ द पावरफुल थिंग। ओके। और शिवा को अर्पण करना, हठ योगा में बोल रहे थे, उनका इष्ट देवता आदिनाथ जी, उनको अगर आप आपके गुरु आपके कोई किसी को मान रहे हैं, उनको आप देंगे तो उस हिसाब से वो बेटर है। नेक्स्ट, प्योर, मॉडरेट, न्यूट्रिशियस एंड सात्विक खाना। तो आप अगर याद है हठ योगा का एक श्लोक में बताया था, ओके, धातु प्रपोषणम, तो सब धातुओं को नॉरिश करने वाला खाना। सात्विक फूड, सात्विक मीन्स फ्रेश, लाइट एंड अहिंसा नहीं रहेगा, वो है प्योर खाना, जिसमें नेचुरली जो चीजें आएंगे, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड, ज्यादा मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स ऐसे नहीं रहेगा, पत्ते हरा रहेगा, होलसम ग्रेन वो सब रहेगा, घी और दूध का कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेजेंस होगा, तो सब प्लांट बेस्ड फूड होगा, तो दैट ऑल विल कम गुड फॉर द किसके लिए, योगी के लिए, हठ योगी प्रैक्टिशनर के लिए। ओके, वो अर्ण उच्चत है बोलते हैं, उच्चत मतलब एलिजिबल, जो योग्यता है। So the stomach should fill half with solid food, 1/4 with water or liquid, and 1/4 empty for air movement. Characteristic of मिताहारा: मॉडरेट क्वांटिटी, सो ओवर ईटिंग नहीं चलेगा। अत्याहारा एक बाधक बाधक तत्व है, आप लास्ट क्लास में सुने हो। सात्विक, प्योर एंड फ्रेश, 3 घंटे के अंदर ही खाना है, इजीली डाइजेस्टेबल। आप जब ना सबको लाइट और अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से स्टीम और डाइजेस्टेड कर रहे हो, उसमें घी वगैरह है, बहुत डीप फ्राइज नहीं है, अहिंसा नहीं है, सीजन अलाइंड है, तो इजीली पचेगा भी। न्यूट्रिशियस, मेंटेन्स हेल्थ, ओके, वो न्यूट्रिशियस खाना है जिसमें सब चीजें आपको कहीं ना कहीं मिला हुआ होगा, जो आपको एक ऑफिशियली एक मील बोलते हैं ना, केले के पत्ते में थोड़ा चावल, एक दो मतलब वो क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रेन का कुछ आइटम आटा होगा, एक प्योर बॉइल्ड सब्जी होगा, एक दाल होगा, एक छाछ होगा, ओके, थोड़ा स्प्राउट्स होंगे, ओके, एक हल्का हलवा की मिठाई, सब जो आश्रम का खाना बोलो, वैसे चीज अगर होगा, स्पाइस कम रहेगा, बैलेंस रहेगा, न्यूट्रिशियस रहेगा, और सब चीजों को पोषण करेगा। टाइमली रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, तो आप जब मठ में रहोगे, किसी में रहोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन जनरली खाना कम और 4-4 घंटे में ऐसे गैप में खाएंगे, और बहुत कम खाएंगे, तभी आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, खाना अच्छे से पचेगा और आपके लिए हेल्प करेगा। बेनिफिट्स ऑफ मिताहार: इम्प्रूव डाइजेशन, अगर कम खा रहे हो ना, थोड़ा अगर डाइजेशन कम है, कफ प्रकृति भी है, खाना पच जाएगा। मेंटेन्स हेल्थ, कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या, एब्डोमेन का कैपेसिटी घट जाएगा और बॉडी का, माइंड का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। इंक्रीजेस एनर्जी, बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा क्योंकि खाना अच्छे से पचेगा। कंट्रोल सेंसेस, अगर आप डिसिप्लिनली खा रहे हैं, तो आपका डिजर्नेस घटेगा, ओके, ऑटोमेटिक आपका सेंसेस कंट्रोल में रहेगा। एंड कम खाना मेडिटेशन के लिए बहुत पावरफुल, जैसे विपासना में हम लोग को 11 बजे दिया जाता था लंच, उसके बाद और नहीं मिलेगा नेक्स्ट डे सुबह, तो मॉर्निंग 11 से 11:30-45 तक खाना खा लो, 12 बजे के बाद और अलग अलग प्रोसेस है रेस्ट का, फिर 1 o'clock तक मेडिटेशन हॉल में आ जाना, उसके बाद रात तक वही एम्प्टी स्टोमक में, लाइट स्टोमक में रहेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ नए बच्चे या कुछ किसी का मेडिकल कंडीशंस है, तो उनको फ्रूट्स और हल्का कुछ बहुत हल्का चीज कुछ देंगे, जो शाम को वो लोग खा सकते हैं टैबलेट्स लेने के लिए, वो भी बहुत लेट नहीं, 5 बजे से देंगे, फिर 6 बजे तक आपका अलग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसी 15-20 मिनट में कुछ स्नैक्स देंगे हल्का, तो वही खाना है। तो उसमें प्योर खाना आपको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, थोड़ा मुरमुरे, नहीं तो आपका कॉर्न थोड़ा करके दे दिए, नहीं तो फल मूल काट के दे दिए, तो वो खाना है, नहीं तो स्वीट कॉर्न, नहीं तो ये मिलेगा, मतलब जो ज्यादा
प्रिपेयर करने का मतलब पकाने का जरूरत नहीं है, ऐसे एक लाइट खाना कुछ देंगे टैबलेट्स वगैरह लेने के लिए, वो भी 5 बजे, तो ऑटोमेटिक उसका क्या है, होल डे खाली पेट में और कम आहार में रहेगा तो फिट रहेगा। और जिसको थोड़ा ज्यादा भी खाना है, 11 बजे जब खाएंगे, ऑटोमेटिक वो पित्त पीरियड हाई रहता है, तो 11 से 12 के अंदर जो खाया उसका, और खाना कहाँ रहेगा रात को सोने तक, ऑटोमेटिक उसका पच जाएगा। प्रिवेंट्स लेजीनेस, अगर आप कम खा रहे हो लेजीनेस भी कम रह रहा है, मूड मूड स्विंग कम रहेगा, उसीलिए उसका बेनिफिट। फूड्स रिकमेंडेड इन मिताहारा, रिकमेंडेड फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, मिल्क या घी मॉडरेटली, नट्स, ओके, ड्राई फ्रूट्स, सिंपल वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड फूड। बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स भी आपका मिताहार में नहीं होगा, बहुत लिमिटेड। फूड्स टू अवॉइड, एक्सेसिव स्पाइसी फूड, वहां तो स्पाइस का नाम ही नहीं है जो मठ में आश्रम में जाएंगे। स्टिल फूड, आपको तो फ्रेश खाना बना के ही खत्म हो जा रहा है, और रखा हुआ खाना कौन देगा, नहीं मिलेगा। ऑयल फूड बहुत कम, मतलब उसमें ऑयल ही नहीं होता, अगर भी है पूरा कोल्ड प्रेस ऑयल, नहीं तो घी का यूज होता है, तो ऑटोमेटिकली वो है। अल्कोहल, अल्कोहल और ऐसे निशा का चीजें घर से कोई खाना लेने का ही अलाउड नहीं है, तो और क्या लेके जाएंगे वहां, तो नो फूड अलाउड। नेक्स्ट, ओवर ईटिंग, खाना ज्यादा नहीं, अलाउड नहीं है। और अगर जो खाया भी लंच में थोड़ा ज्यादा भी खा लिया, इतना जल्दी दे देंगे 11-12 बजे के, आपको शाम तक 9 बजे तक कुछ रहेगा ही नहीं पेट में, तो ऑटोमेटिक आपका होल डे डीप मेडिटेशन प्रोसेस वगैरह सब होगा, और उसमें भी बहुत सारे एक्टिविटी हैं, तो ऑटोमेटिक आपका खाना पच जाएगा। सेवा करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज, अपने खुद के कपड़े वगैरह धोना पड़ेगा, सब करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक खाना वगैरह ना बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और आप ऑफिस एनवायरमेंट, एसी का एनवायरमेंट वहां तो नहीं मिलेगा ना, वहाँ प्योर नेचर का आइलैंड रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का एक रिन्यूअल हो जाएगा। पत्या, पत्या मीन्स होलसम बेनिफिशियल, ओके, सुइटेबल फॉर हेल्थ एंड योगा प्रैक्टिस, ओके, तो होलसम फूड मतलब ज्यादा पॉलिश नहीं होगा, ओके, ज्यादा उसमें कुछ और चीजें केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं होगा, तो इट इंक्लूड्स प्रॉपर फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल एंड कंडक्ट। तो पत्याहार में आपका हैबिट्स वाइज, जो युक्ताहार में बोल रहा था, समय पे खाएंगे, गैप में खाएंगे, मिताहार में खाएंगे, रेस्ट भी अच्छे से लेंगे, कोई नेगेटिव हैबिट नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो सब, कोई नशा वगैरह तो नहीं चलेगा, तो ऑटोमेटिक इट विल बी गुड। नेक्स्ट, पन्नी जी अभी तक कोई डाउट? हेलो। नो सर, ऑल गुड। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ पत्या, सात्विक डाइट, क्लीनिनेस, ओके। पत्या में आप बोल सकते हैं सर खाने के बारे में, खाने के बारे में नहीं, पूरा दिनचर्या भी आता है, ठीक टाइम पे सोना है, ट्रूथफुल रहना है, आपका जो खाना खाए वो एक सही तरीके का धर्म के हिसाब से अर्जन किया हुआ खाना होना है, मतलब आपका सैलरी चलेगा, लेकिन आप जैसे इंटरेस्ट से किसी को झूठ बोल के किसी से ठग के लिए वो सब नहीं चलेगा। डिसिप्लिन, एक आपका वेल डिसिप्लिन लाइफ चलना, प्रॉपर एक्सरसाइज, तो आपको एक 45 मिनट्स 1 आवर का जो आसनास प्राणायाम रिकमेंड है उतना आप करोगे, तो मॉडरेटली करना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा करना है, लेकिन 1 घंटा आपका शारीरिक रहेगा, थोड़ा चलना रहेगा। कुछ आश्रम में कोर्स में चप्पल अलाउ नहीं करते, तो कोर्स स्टार्ट होने के बाद चप्पल नहीं, बातचीत नहीं, मोबाइल अलाउ नहीं, तो कपड़ों में बहुत जीन्स वगैरह अलाउ नहीं, तो ऑटोमेटिक आपका वो डिसिप्लिन आ जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ पत्या, मेंटेन्स गुड हेल्थ, डिसीज नहीं होगा, मेंटल पीस होगा, क्योंकि आप वैसे दिनचर्या और आपका ऋतुचर्या का हिसाब से ही चीजें मिलेंगे। सपोर्ट्स योगा प्रैक्टिस, योग में आप जैसे आप एक आयुर्वेदा का रूटीन में आ जा रहे हो, एक दिनचर्या में आ जा रहे हो, खान पीन डाइट को बहुत ध्यान दे रहे हो, ओके, योगिक डाइट ले रहे हो, तो ऑटोमेटिक वो योगा को प्रैक्टिस करेगा, सपोर्ट करेगा। बैलेंस दोषस, वाता पित्त कफ को बैलेंस करेगा, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन रूटीन चलाओगे, और जितना कम खाओगे, जैसे योगी लोगों को 1 बार का खाना था, 1 बार खाओगे तो योगी, 2 बार खाओगे भोगी, 3 बार खाओगे भोगी, तो मेन मील आपका जो है 10 to 2 के अंदर एक जो है मेन मील ले लेंगे, दैट इज मोर देन ना। सुबह भी आप जूस ये वो करके कुछ हल्का फल मूल ऐसे करके खा सकते हैं, शाम को भी ऐसे कुछ खा सकते हैं, तो आपका मेजर मील एक हो गया, तो बॉडी का बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अपत्या मीन्स अनहोलसम, हार्मफुल, ओके, नॉट सुइटेबल फॉर हेल्थ एंड योगा, these habits disturb body and mind।
तो जो पॉलिश्ड फूड होगा, थोड़ा केमिकल वाइज होगा, कुछ होगा, तो वो सब चीजें आपके लिए दिक्कत करेगा। उसमें बहुत चीजें आ जाते हैं अपत्य में। मतलब अपत्य मतलब नॉट सब्सक्राइब्ड फूड, नॉट रिकमेंडेड फूड। एंड पत्या मतलब रिकमेंडेड फूड, सात्विक। इसमें अपत्य में रजस और तमस खाना आ जाएगा। ओवर ईटिंग नॉट अलाउड, अपत्य हो गया। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो बात ही नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा है एज ए बेसिक आप लोगों को हाईलाइट करने के लिए। आश्रम में ऐसी चीजें आप सोच ही नहीं सकते। एक्सेसिव स्लीप, ज्यादा सोने का मन ही नहीं करेगा। इतना प्योर और नेचुरल ऑक्सीजन होता है उन सब जगह में, आपको बहुत जल्दी आपका बॉडी रिटेन कर लेता है। इरेगुलर रूटीन, इरेगुलर रूटीन होगा ही नहीं, सबके लिए एक ही रूटीन है। तो आप समाज में वो रूटीन मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपका डिसिप्लिन है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत उससे मेंटेन करोगे। एक्सेस एंगर, अरे वो सब जगह में एंगर कहाँ से आएगा? सब पॉजिटिव लोग हैं, चुप रहना है, नो जंक फूड एंड ऑल। तो और एंगर कहाँ आएगा? एंगर एंजाइटी का खेल ही खत्म। आपको कोई दौड़ के बस नहीं पकड़ना है, कुछ ज्यादा कमाना है, कुछ पे करना है, कुछ नहीं हो। जो है स्टार्टिंग में ही, उसके बाद आपको उसी रूटीन में चलता रहना। तो वही हमें पत्या अपत्या वाला रूटीन डेली लाइफ में अगर ला पाएंगे, कष्ट है, अगर ला पाएंगे देन योगिनी बन सकते हैं। आप में है परनी जी, आप में जितना नॉलेज है और डेडिकेशन है, आप बन सकते हो, आगे एक अच्छा योगा टीचर बन सकते हो बोल के मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, आई मे बी विल। आज आज शायद थोड़ा नॉलेज कम होगा क्योंकि नए जी। आए हैं, बट एक टाइम के बाद आप सब मल्टीपल टेक्स्ट को एक्सप्लोर करके, बुक्स को पढ़ के इस लाइन में कंटिन्यू रहेंगे, आपका हो जाएगा मैम। आप में डिसिप्लिन है, उतना मैं देख पा रहा हूँ। इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब उस फील्ड के लिए एक एंथ्यू रहता है ना, आप में वो इंटरेस्ट है इस चीज का। तो जी। उसको अगर आप कंटिन्यू कर ले कुछ साल, एक 3 साल 4 साल 5 साल, वो आपका नेचर बन जाए। एटलीस्ट योगा, योगा का क्लासेस लेना। क्यों? किसी एक बहाने ना टच रहेगा वो, छोड़ना मत। एक कोर्स के बाद अलग कोर्स कीजिए, किसी को सेवा दीजिए, कहीं योगा का छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब कीजिए, बट बी इन दिस टच। और आप में है वो क्वालिटी, मैं देख पा रहा हूँ। बिकॉज आंसरिंग से मुझे पता चल रहा है ना कि यू आर रिसीविंग द जी। थिंग्स इन ए वेरी क्विक टाइम। ओके, तो अपत्य का ठीक। इफेक्ट क्या होगा? बीमारी आएगा। उल्टा पुल्टा टाइम में खाएंगे, उल्टा पुल्टा चीजें खाएंगे, बासी खाना खाएंगे, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा। पुअर कंसंट्रेशन ओब्वियसली। स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, और टाइम में खा रहे हैं, लेट डिनर कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। वीक डाइजेशन, ज्यादा खाएंगे तो फर्स्ट वीक डाइजेशन, और हमारा नेचर का एलेंट खाएंगे तो और है, लेजीनेस आएगा ज्यादा खाने से, और ऑब्स्टेकल्स इन योगा प्रैक्टिस, तो सब बाधक तत्वों में आ जाता है। रिलेशंस बिटवीन मिताहारा पत्या एंड योगा। मिताहारा, ओके, मठा भी इसमें लिखना था। ओके, मठा एक प्रॉपर एनवायरमेंट या कैंपस, छोटा कैंपस, जिसमें आपको एक माहौल मिल जाता है, काम प्लेस, सब एक ही चीज का, एक ही फील्ड में है, तो आपको वहाँ माहौल अच्छा, उसी में दिनचर्या सात्विकनेस सब रहेगा, तो वो स्पिरिचुअल एनवायरमेंट रहेगा वो। मिताहारा प्रॉपर डाइट। पत्या हेल्दी कंडक्ट, मतलब खाने के साथ एक दिनचर्या को पत्या बोला जा रहा है। अपत्या जो हमारा बाधक तत्व है वो सब नहीं। नेक्स्ट, योगिक व्यू ऑन डाइट एंड लाइफस्टाइल। बॉडी एंड माइंड इंटरकनेक्टेड, जो कि हाँ, आप बोल सकते हो कि मेरा एक्शन के साथ, माइंड के साथ, ब्रीदिंग के साथ सबका अलाइनमेंट है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, तीनों में एक अलाइनमेंट। फूड इन्फ्लुएंसेस थॉट्स, तो अन्नमय कोश एक तो है, डायरेक्टली फूड के साथ लिंक है। और एक बताया जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। मैं एक नॉनवेज चीजें खाऊंगा, कैसे मेरे में डिसिप्लिन आएगा? मन शांत नहीं होगा, तो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक बोलते हैं ना अथ योगा अनुशासनम, तो एक अनुशासन बहुत जरूरी है योगिक लाइफ में। सात्विक फूड प्रमोट्स कामनेस, प्यूरिटी, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। तो आप अगर सात्विक खाना खा रहे हो, सिंपल खाना खा रहे हो, मन शांत रहेगा, प्यूरिटी रहेगा मन में। और ये बोल रहा हूँ, ये सब एडिशनल फैक्टर हैं, आपको हेल्प करेंगे। तो ये छोटा छोटा चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फॉर द लॉन्गर थिंग। ओके, और ये भी है जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल रहा था लास्ट टाइम, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उससे जलसनेस घटेगा। ओके, सद्भाव आएगा आप में, एक ओवरऑल योगिक एटीट्यूड और डेवलप होगा, तो दूसरे के खुशी में, दूसरे के सक्सेस में आप खुश रहोगे। आपका फ्रेंड सर्किल हैप्पी, सक्सेसफुल, लाइक माइंडेड पीपल होंगे, तो आपका फ्रेंडलीनेस की वजह से समाज में आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा।
सबके साथ सब मिलके रहेंगे, एज ए संग रहेंगे तो वो हेल्प करेगा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मथा, मिताहारा, पत्या एंड अपत्या आर important foundations of hatha yoga. So hatha yoga, Pradipika, emphasize that proper environment, moderate diet, wholesome habits and disciplined living. तो सब चीज खाने के हिसाब से भी, रूटीन के हिसाब से, ओके, अध्ययन के स्वाध्याय के हिसाब से, घट शुद्धि के हिसाब से, वो सब चीजें हम करेंगे। और कभी कभार फास्टिंग वगैरह क्यों था स्पिरिचुअली, बहुत सब रिलीजन में है, क्यों है? बिकॉज ऑटोफेगी मोड ऑन होगा। और आजकल डॉक्टर तो सबको कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में ही बोल रहे हैं कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करो एंड ऑन। सो वेस्टर्न टर्म नहीं है, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट ओनली। वो लोग उसको एक एक फ्रेज बना के दे दिए बस। जैसे हमारा हल्दी में दूध मिला के हम लोग पीने वाला हमारा बहुत ओल्ड कल्चर है, लेकिन उसको वेस्टर्न ने गोल्डन मिल्क बोल के आज कुछ अवार्ड ले रहे हैं। तो दिस ऑल आर फ्रॉम वेदा, वेदांतस, आयुर्वेदास एंड online definition. Matha, a peaceful and suitable place for yoga practice. Mitara, moderate and balanced sattvic diet. Patya, wholesome habits beneficial for health and yoga. तो पत्याहार जो रिकमेंडेड फूड है एंड रिकमेंडेड रूटीन है। अपत्या, नॉन रिकमेंडेड रूटीन, नॉन रिकमेंडेड फूड एंड लाइफस्टाइल। आपका बारी। लगभग टाइम पे खत्म कर दिया 1 आवर में, लेकिन 4-5 डाउट है तो मैं ले सकता नहीं सर, ऑल गुड, आज का टॉपिक इजी था। हूँ। अच्छा है ना?